Hello everyone, I am here with the third chapter of Political Science, class 10th, and the name of the chapter is Democracy and Diversity. So everyone, मैं यहाँ पर क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी मीन्स लोकतंत्र और विविधता के साथ आपके सामने हूँ। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में विविधता कैसे है। मीन्स डेमोक्रेसी तो है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारे लोग एक समान हैं, लेकिन उस डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो ओवरव्यू यानी किसी चैप्टर का जब हम परिचय देते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसको ओवरव्यू कहते हैं। In the last chapter, we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities. But language and reason are not the only feature that give a distinct identity to people. Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribe, etc. In this chapter, we study how democracy responds to social differences, divisions, and inequalities. We begin with an example of public expression of social division. We then draw some general lesson about how social differences can take various forms. We then turn to how democratic politics affects and is affected by these social diversities. सो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई और रीजनल यानी कि क्षेत्रीय जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया गया था। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम ये देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। The pictures on this page depict an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States. These presents the medal ceremony of the 200 meters race in the 1968 Olympics held at Mexico City. The two men standing with clenched fists upraised and heads bowed while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos. They are African American. They had won the gold and bronze medal respectively. They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. With this gesture, they try to draw international attention to racial discrimination in the United States. The black gloved and raised clenched fists were meant to symbolize black power. The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman, wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. Do you think that the Carlos and Smith should have raised an internal matter of American society in an international forum? Would you say that what they did was political? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of protest? If you were in Norman's place, what would you do? सो इस पिक्चर में आपने इस पेज पे एक पिक्चर देखी। अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। ये 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों में 200 मीटर रेस के पदक समारोह यानी कि सेरेमनी की तस्वीर है।
अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। ये अफ्रो अमेरिकन हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। इन्होंने जूते नहीं पहने थे। सिर्फ मुँह से चढ़ाए पुरस्कार लेने दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थीं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई रेसर पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो कि न तो अमेरिकन थे न अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Their medals were taken back. Back home, they were subjected to a lot of criticism. Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympic, but their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the US recently. The San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया, बताते हुए दोषी करार दिया और उन्हें उनसे पदक वापस ले लिया। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की डेथ हो गई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, डिवीज़न यानी डिफरेंसेस असमानताएं, सिमिलैरिटीज समानताएं, डिवीज़न यानी विभाजन। The athletes in the example above were responding to social divisions and social inequalities. But does that happen only in societies which have racial division? In the previous two chapters, we have already noted some other forms of the social division. The examples of Belgium and Sri Lanka show both regional and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different languages. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. The social diversity can take different forms in the different societies. एग्जाम्पल में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर होता है? पिछले 2 चैप्टर्स में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा। एग्जाम्पल के तौर पर बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप से सामने आती है। Origins of social differences, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। These social differences are mostly based on accident of birth. Normally we don't choose to belong to our community. We belong to it simply because we were born into it. We all
experience social differences based on accident of birth in our everyday lives. People around us are male or female, they are tall and short, have different kinds of complexions, or have different physical abilities or disabilities. But all kinds of social differences are not based on accident of birth. Some of the differences are based on our choice. For example, some people are atheist. They don't believe in God or any religion. सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उसकी शारीरिक क्षमताएं और या अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग एथिस्ट होते हैं, जो मतलब नास्तिक होते हैं, जिनका कि भगवान में या किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल सम पीपल फॉलो रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर्न। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसको न चुन करके अपने पसंद के अकॉर्डिंग धर्म को चुनते हैं। Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. All these led to formation of social group that are based on our choices. हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे या खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। Every social difference does not lead to social division. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. People belonging to different social groups share differences and similarities, cutting across the boundaries of their groups. In the instance above, Carlos and Smith were similar in one way. Both were cutting across the boundaries of their group. In the instance above, Carlos and Smith were similar in one way. Both were African American and thus different from Norman, who was white. But they were also all similar in other way. They were all athletes who stood against racial discrimination. हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती ज़रूर हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों एफ्रो अमेरिकन थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी, वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. It is also possible for people from different religion to have the same caste and feel close to each other. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other, or they feel they are very different. Thus, we all have more than one identity and can belong to more than one social group. We have different identities in different context. अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद ही एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। ये भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें।
एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घने संबंध नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी को एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल यह संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस overlaps with other differences. The difference between the blacks and whites people is social division in the US because the blacks tend to be poor, homeless and discriminated against. In our country, Dalits tend to be poor and landless. They often face discrimination and injustice. Situation of this kind produce social division. When one kind of social difference becomes more important than the other and people start feeling that they belong to other different communities. सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी ओर विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब और हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। If social differences cross-cut one another, it is difficult to pit one group of people against the other. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different sides on a different issue. Consider the cases of Northern Ireland and the Netherlands. Both are predominantly Christian but divided between Catholics and Protestants. In Northern Ireland, class and religion overlap with each other. If you are Catholic, you are also more likely to be poor and you may have suffered a history of discrimination. In the Netherlands, class and religion tend to cut across each other. Catholics and Protestants are about equally likely to be poor your age. The result is that Catholics and Protestants have had conflicts in Northern Ireland while they do not do in the Netherlands. Overlapping social differences create possibilities of deep social division and tension. Cross-cutting social differences are easier to accommodate. अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर आ सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण ले लेते हैं। दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की ज़मीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। Social divisions of one kind or another exist in most countries. It does not matter whether the country is small or big. India is a vast country with many communities. Belgium is a small country with many communities. Even those countries such as Germany and Sweden that were once highly homogeneous. Homogeneous का मतलब होता है समरूप समाज. Are undergoing rapid change with influx of people from other part of the migrants. Bring with them their own culture and tend to form a different social community. In this sense, most countries of world are multicultural. आज अधिकतर समाज में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग रहते हैं।
जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। How do these social divisions affect politics? What does politics do to these social divisions? At first sight, it would appear that the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tend to divide any society. If they start competition in terms of some existing social divisions, it can make social division into political division and lead to conflict, violence, or even disintegration of a country. This has happened in many countries. सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति की इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। रेंज ऑफ आउटकम्स मीन्स परिणामों का दायरा। टेक द केस ऑफ नॉर्थ आयरलैंड दैट वी रिफर टू एवर द रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मेनी। उत्तरी आयरलैंड का ही एग्जाम्पल है जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा is the site of a violent and bitter ethno-political conflict. Its population is divided into two major sects of Christianity. 53% are Protestant while 44% are Roman Catholics. The Catholics were represented by nationalist parties who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country. The Protestants were represented by Unionists who want to remain with the UK, which is predominantly Protestant. Hundreds of civilians, militants, and security forces were killed in the fight between Unionists and Nationalists and between the security forces of the UK and the Nationalists. It was only in 1998 that the UK government and the Nationalists समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट की है जबकि 44% रोमन कैथोलिक की है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी यह मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाली हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। महाधार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। Such examples led some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix.
They think that it would be best if there are no social division in any country. If social division do exist in a country, they must never be expressed in politics. उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disaster. We have already seen that social divisions of one kind or another exist in most countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. In a democracy, it is only natural that political parties would talk about these. पर इसके साथ ये भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीति की शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना भी बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। Divisions make different promises to different communities. Look after due representation of various communities and make policies to redress the grievances of the disadvantaged communities. Social divisions affect voting in most countries. People from one community tend to prefer some party more than others. In many countries, there are parties that focus only on one community, yet all this does not lead to disintegration of the country. इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। 3 डिटरमिनेट्स मीन्स 3 आयाम। 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social division. First of all, the outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestants, their differences were difficult to reconcile. It much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. A majority of Belgians now feel that they are as much Belgian as they are Dutch or German speaking. This helps them to stay together. This is how most people in our country see their identity. They think of themselves as Indian as well as belonging to a state or a language group or a social or religious community. सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हों। इस नज़रिए में उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का हिस्सा। Second, it depends on how political leaders raise the demands of any community. It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि किसी भी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली चीज़ों की मांगों को मान लेना आसान है। The demands for only Sinhala was at the cost of the interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. In Yugoslavia,
The leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान है और हितों के खिलाफ थी। युगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। Third, it depends on how the government reacts the demands of different groups. As we saw in the examples of Belgium and Sri Lanka, if the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority communities, social divisions become less threatening for the country. But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result of often quite the opposite. Such attempts at forced integration often sow the seeds of disintegration. तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार है और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। Thus, the assertion of social diversities in a country need not to be as a source of danger. In a democracy, political expression of social divisions is very normal and can be healthy. This allows various disadvantaged and marginal social group to express their grievances and get the government to attend to these. Expression of various kinds of social divisions in politics often results in their cancelling one another out and their reducing their. इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी ज़रूरतें और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है जिसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इंटेंसिटी, दिस लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होता है। But a positive attitude towards diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. Such a fight often takes their democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections. Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. The struggle against the inequalities sometimes take the path of violence and defense of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मकता नज़रिया रखना, सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र का ही सबसे अच्छा तरीका है।
Thank you, everyone.